બીજું મને તમે કોસ્ટ બનાવી દીધો છે, પણ મેડમ આપણે એકવાર સહેજ એમને We, the Indian Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, ISHRE, stand tall in the Indian industry with over 10,000 professionals as members and almost an equal number of student members. Founded in 1981 and headquartered in Delhi, we operate from chapters and sub-chapters spread all over India, bringing our entire industry together. Individuals become members of our society according to their professional and academic standings. Our roadmap of the future looks very bright, with thousands of new members joining this technical society every year and bringing in a fresh outlook to our industry intelligence. ISHRE disseminates knowledge through its technical committees, which consists of some of the best minds of our industry. It publishes technical books, newsletters, and a prestigious journal, distributing the wealth of knowledge to all its members. Working with government departments, ISHRE helps formalize industry codes and standards. ISHRE promotes research by offering financial support to student members to carry out groundbreaking work in technology, systems and processes. Our educational wing, ISHRE Institute of Excellence, organizes training programs and workshops to help members enhance their skill sets. Our specially designed certification programs under ICP, that is, ISHRE Certified Professional, empower professionals to always be in step with the prevailing technology. Specially designed courses for technicians are offered to meet the ever-increasing demand for a skilled workforce. ISHRE organizes exhibitions, conferences, panel discussions, and product presentations throughout the country. We organize the industry's largest international exposition in South Asia, Acrex India, to showcase the cutting-edge technology, innovation, and provide a platform for closer interactions amongst the decision makers in the industry. The Acrex exhibition is now growing from HVAC&R show into BFA, Build Fair Alliance. This brings together several allied shows connected with the building services industry all at one location. Our chapters organize several other popular events like AcriConf in Delhi, Raycon in Kolkata, Symposia in Mumbai, TechFest in Goa, and many more. We are committed to provide training and career guidance to our student members through seminars, lectures, quiz contests and site visits. A-Quest, a prestigious quiz competition organized by ISHRE to catalyze the transformation of the budding engineering professionals. ISHRE provides a platform to potential employers to select student members for careers in HVAC and our industry at the ISHRE Job Junction. Young minds are made aware of the need for saving power, clean air and sustainability. The K-12 initiative of ISHRE focuses attention on school students' development to inculcate a scientific fervor and help develop them into responsible citizens. Speedy information is imperative to keep moving forward in this hyper-connected digital age.
Searcher. A specifically designed search engine is now available, which allows access to a well-catalogued database on HVACR and building services industry with just a few clicks. ISHRAE cooperates with various national and international bodies, industry, governments, academia, think tanks to promote the concept of sustainability, environmental protection, and energy efficiency and conservation to enter and explore the universe of the Indian HVACR industry. Log on to ishrae.in that unfolds a panorama of information. Let us engineer a sustainable future together through ISHRAE. Welcome to all. Hardik bhai, please proceed further. Thank you. Welcome to all. I'm Professor Hardik Shukla from Government on behalf of ISHRAE chapter and host Rajkot subchapter, which is subchapter of ISHRAE chapter. I welcome you all. Today, very special speaker, who is my colleague at Government Engineering College, Godhra, and assistant professor in electrical engineering department. She was gold medalist in College of Engineering and Technology, Jalgaon during her BE, as well as she did her master degree from MS University, Vadodara, work as a faculty at BIT and as well as SVIT, and having own family business. Her husband, Mr. Amul Damle, is handling the air gear, air brakes and switch gear private limited at Vagodia. They are dealing with the business of, as you know, that isolators, as well as the different kind of electrical products, fuses, etc. So today she is going to take the session on fundamentals about electrical components in refrigeration and air conditioning industries. Such kind of sessions are really very rare kind of sessions that happening in ISHRAE platform. Normally we are having the session based on the mechanical field, but now this is really good on demand. This is the special session for Rajkot subchapter. So I request madam, please start the session. Thank you. Madam, now you can share your screen. Yes, ma'am. Now you are audible, please. Hello. Yes, ma'am. Audible. Okay, so shall I start? Thank you very much, Hardik Shukla sir, for giving my introduction very nicely. Thoda network issue hai. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I'll start my screen. Okay. So today हम आज देखेंगे basics about electrical concept which is used in HVAC industries, right? So I know कि you are a mechanical engineer, but थोड़ा बहुत electrically आपको पता होना चाहिए कि क्या है. So that we are going to learn today. Flow of presentation ऐसा है कि जिसमें पहले हम introduction देखेंगे, ठीक है? उसके बाद we are going to learn basic electrical concept. ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, देन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज्ड इन HVAC सिस्टम. आई हैव पुट सम एनिमेशन वीडियोस आल्सो. ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग स्कीमेटिक्स. बराबर, स्कीमेटिक्स मतलब वायरिंग डायग्राम जो है उसके सिंबल्स है वो किस तरह से यूज होते हैं और कितने कितने टाइप्स के वायरिंग डायग्राम्स अवेलेबल है. ठीक है, उसके भी फोटोज मैंने रखे हैं तो वो हम लर्न करेंगे. एंड फाइनली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स.
बराबर, टू इम्प्रूव अवर एफिशिएंसी, एनर्जी कंजम्पशन। तो अभी nowadays we are using a variable speed drives widely. ठीक है, so first of all this is the diagram, just a minute, this is the diagram, you all know एक बिल्डिंग का यहाँ पे वाटर हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड किया है. मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम HVAC ओनली, रेफ्रिजरेशन के साइड की है, तो आपको ये डायग्राम समझ में आ जाएगा, राइट. अभी इसमें हम थोड़ा इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू लर्न करेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, राइट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन जनरेट, वी कैन ट्रांसमिटेड, है ना. तो वो है एक आपका डीसी वोल्टेज एंड डीसी करंट, और दूसरा है एसी वोल्टेज. बराबर, डीसी वोल्टेज क्या है? इट इज अ कांस्टेंट वन. आप ग्राफ के इस पे देख सकते हो. बराबर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम. बराबर, टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है. वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है, इट रिमेन्स कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम. दूसरा एक करंट है ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, जिसमें उसका मैग्नीट्यूड आप देखोगे तो एक्स एक्सिस पे टाइम दिया है, हर एक इंस्टेंट पे डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड होता है. बराबर, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म बोलते हैं, उसका जो वेवफॉर्म है वो साइनोसॉइडल है. बराबर, बोथ इज हैविंग इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. बराबर, अपने घर में जो सप्लाई आता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस आता है, विच इज ऑफ सिंगल फेज और 3 फेज. वी विल लर्न दिस, राइट. अभी इलेक्ट्रिकल में देयर आर 3 पैरामीटर्स दैट यू शुड नो. एक है वोल्टेज, दूसरा है करंट, एंड अनदर वन इज द रेजिस्टेंस. बराबर, वोल्टेज अगर हम मैकेनिकल सिस्टम की बात करें, उसको कोरिलेट करें, तो इट इज लाइक वोल्टेज मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. जैसे आप में करंट को हम वाटर फ्लो के साथ कोरिलेट कर सकते हैं. मैकेनिकल में अगर पाइप में वाटर फ्लो करवाना है तो वी नीड अ हेड्स, दो डिफरेंट हेड्स चाहिए. वैसे ही इलेक्ट्रिकल में देयर मस्ट बी अ सम पोटेंशियल डिफरेंस. जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वो डिफरेंस की वजह से देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Okay, that flow of electrons, that flow of water from upper level to lower level, we can term it as a current. बराबर, so current we know उसका यूनिट है एम्पियर. बराबर, इट इज नथिंग बट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. वोल्टेज को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, एंड बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ओनली देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट होता है. ओके, अभी जैसे हर एक सिस्टम में हर एक चीज में जैसे आपका मोशन है तो उसमें भी रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही जब इलेक्ट्रिकल कोई मटेरियल के अंदर, कोई वायर के अंदर फ्लो होता है तो ये मटेरियल का खुद का रेजिस्टेंस होता है, राइट. तो जो वो रेजिस्टेंस है दैट विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट. बराबर, एंड देयरबाय वो हीट प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं लॉसेस. बराबर, तो ये तीनों का रिलेशनशिप जो है वो अपने साइंटिस्ट है ओम ने डिफाइन किया हुआ है. इट इज इक्वल्स टू जॉर्ज सिमोन ओम, उसका फुल नेम है, राइट. तो उसने क्या डिफाइन किया है कि V इज इक्वल्स टू IR. ठीक है, सो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस. बराबर, एंड in other words we can say that resistance is equals to V upon I, volt upon ampere, it is called as the resistance. उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेजिस्टेंस के साथ साथ हम आगे देखेंगे कि एक इंडक्टेंस भी होता है और एक कैपेसिटेंस होता है. बट ये हेलो हेलो सर, आवाज नहीं आ रही थी सर, क्या हुआ? मैंने एक्सप्लेन किया, आ रही है आवाज, नहीं आ रही थी, क्या हुआ? आवाज आ रही है लेकिन आपका वो शेयरिंग अभी हो गया बंद इसमें. ओके, तो आई हैव टू अगेन शेयर ना, एक मिनट. हाँ, ओके सर, आवाज सर अभी दिख रहा है? yes properly continue ma'am. Okay, well, so there are different types of the circuit, जैसे सीरीज, पैरेलल, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, पावर सर्किट, कंट्रोल सर्किट. सीरीज सर्किट में क्या है? हर एक एलिमेंट है वो सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे. जैसे जस्ट अ मिनट,
ये फर्स्ट सर्किट आप देख रहे हो वो सीरीज सर्किट है जिसमें हमने 3 रेजिस्टेंस लिए हैं R1, R2 एंड R3. दिस 3 आर कनेक्टेड इन सीरीज. सो सीरीज में है इसीलिए सेम करंट फ्लो हो रहा है, बट उसके अक्रॉस में वोल्टेज डिफरेंट है, बराबर, डिपेंडिंग अपॉन कितना रेजिस्टेंस है. और अकॉर्डिंगली ये जो E1 होगा उसको बोलते हैं हम वोल्टेज ड्रॉप I into R1, बराबर. सेम वे डिपेंडिंग अपॉन द I तो सेम ही रहने वाला है सब में, तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2 वहां उसके प्रोपोर्शनल टू E2 होगा. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ R3 उसके प्रोपोर्शनल E3 होगा, बराबर. सो टोटल वोल्टेज across the series circuit it is equals to E1 plus E2 plus E3 and the current remains the same. दूसरा एक सर्किट है जो है पैरेलल सर्किट, जो अपने घर में होता है, बराबर, जिसमें क्या होता है कि ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड, सबके स्टार्ट पॉइंट एक साथ कनेक्टेड है और सबके एंड पॉइंट एक साथ कनेक्टेड है, एंड दैट इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेम वोल्टेज. सो E इज कांस्टेंट and it carries the current depending upon its resistance value के accordingly वो current carry करेगा. Okay, so E1, E2 and E3 वो तीनों सेम रहेंगे which is equals to ES के जैसे ही रहेंगे, but जो current है वो डिफरेंट होगा. I टोटल करंट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3. अपने घर में जो कनेक्शंस होते हैं वो पैरेलल कनेक्शंस होते हैं, बराबर, जिसमें हमारा सप्लाई 230 वोल्ट AC सप्लाई कांस्टेंट आता है, और डिपेंडिंग अपॉन अवर प्रोडक्ट हमने कौन से अपने घर में लगाया है वो अकॉर्डिंगली करंट कंजम्पशन होता है, बराबर. उसके बाद एक होता है ओपन सर्किट, जो हम यहाँ पे इंटेंशनली ओपन सर्किट एक दिखाया है. एक फॉल्ट की वजह से भी ओपन हो जाता है, वायर बंद हो गया, वो पर्टिकुलर ओपन हो गया इक्विपमेंट, तो वो ओपन सर्किट होगा. यहाँ पे एक स्विच दिखाइए, अगर स्विच को हमने ओपन किया है तो इट बिहेव्स इट लाइक अ ओपन सर्किट. और दूसरा एक शॉर्ट सर्किट, जो यहाँ बैटरी में बीच में शॉर्ट हो गया, तो इट इज वन काइंड ऑफ फॉल्ट, बराबर. एक होता है पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट. पावर सर्किट जो होते हैं जिसमें आपके हैवी लोड्स कनेक्टेड होते हैं, मोटर है, कंप्रेसर है, बराबर, तो वो सब का जो सर्किट डायग्राम होता है उसको हम बोलते हैं पावर सर्किट डायग्राम. और दूसरा एक होता है कंट्रोल सर्किट, जो आपके कंट्रोल एलिमेंट, जो स्विचेस, जो रेगुलेटरी एलिमेंट, जो थर्मोस्टेट है, रिलेज है, कॉन्टैक्टर्स है, वो सब लो वोल्टेज पे कनेक्टेड होते हैं कंट्रोल पर्पस के लिए, तो उसको बोलते हैं, उसका जो कनेक्शन सर्किट डायग्राम होता है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल सर्किट, बराबर. सो दीज आर द बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट. वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द पावर ऑल्सो, बराबर. यू नो, अगर हम सिर्फ डीसी की बात करेंगे तो उसमें पावर क्या है, V into I. But when AC comes into picture, तो one important factor which is called as the power factor बीच में आ जाता है. What is that power factor? वो हम पहले देखेंगे, और इसके लिए हम उसको इम्प्रूव करने के लिए भी ट्राई करते हैं कि हाउ डू वी इम्प्रूव पावर, है ना. तो उसके लिए हम कैपेसिटर्स लगाते हैं, तो वो पहले हम समझ लेते हैं. जैसे हमने डीसी पढ़ा, ठीक है, डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, कोई अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म नहीं होता है, कांस्टेंट वैल्यू टाइम के साथ वेरी नहीं होता, ठीक है, तो वो सिर्फ उसमें रेजिस्टेंस आता है. बट जब हम एसी की बात करते हैं तो एसी में इंडक्टेंस और कैपेसिटर भी आते हैं. वी नो दैट, हमको पता है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड होती ही है, बराबर. अभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज इन होती है, मैग्नेटिक फील्ड होना मतलब फ्लक्स होना, करंट है तो फ्लक्स है, करंट ऑल्टरनेटिंग है तो फ्लक्स भी ऑल्टरनेटिंग है, बराबर. अभी ये ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, वो कट करते हैं कंडक्टर के टर्न्स को और ईएमएफ इंड्यूस करते हैं. और जैसे आपके मैकेनिकल के टर्म है, एक एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट रिएक्शन, तो ये ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो किसको अपोज करता है, कॉज. अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज करके भी एक साइंटिस्ट है, उसने बोला है इट अपोजिट्स द कॉज इटसेल्फ. तो कॉज है चेंज इन करंट, बराबर. तो ये चेंज इन करंट को इंडक्टेंस अपोज करेगा, तो आपका वोल्टेज तो वेव फॉर्म प्रोड्यूस हो जाए, बट करंट का क्या होगा, वो डी, और उन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा. द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड एज द पावर फैक्टर एंगल, बराबर. और कॉस ऑफ देन कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड एज द पावर फैक्टर. तो ये पावर फैक्टर एक है कि जिससे आपका एक्चुअल पावर कम आता है अपीरेंट पावर से, बराबर. तो इट इज अगेन, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हमारा पावर फैक्टर सिस्टम में हमने 0.8 सेट किया है,
80%, बराबर 0.8 सेट किया है, तो आपका सपोज बी एंड आई 100 एम्पियर है, तो 100 इंटू 0.8 तो आपका 80% ही यूटिलाइज होगा। एक्चुअल 100%, 100 वी इंटू आई है, बट पावर फैक्टर की वजह से आप एक्चुअल पावर सिर्फ 80% ही यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द पावर फैक्टर विच इज, अगेन आई एम रिपीटिंग कि इट इज कॉसाइन ऑफ एंगल वोल्टेज के करंट के बीच का जो एंगल आता है, जो इंडक्टेंस है, जो कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस में क्या होता है, कैपेसिटेंस किसको बोलते हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दो तो इट वर्क्स एज अ कैपेसिटर। अगर उसको आपने बैटरी के अक्रॉस में कनेक्ट किया तो वो धीरे धीरे चार्ज होना शुरू हो जाएगा, बराबर। जो चार्ज है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में पॉजिटिव चार्ज है, वो आपके अट्रैक्ट होके, कंडक्टिंग मटेरियल है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उससे साथ अट्रैक्ट होके वहां पे एक्यूमुलेट होते हैं। तो कैपेसिटर के एक टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो गए, कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज जमा हो गए, ठीक है। तो इस तरह से कैपेसिटर चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा जब तक उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल है। सपोज यहाँ पे हमने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो 5 वोल्ट होने तक वो चार्ज हो जाएगा। जब हम बोलते हैं फुली चार्ज होगा, जब 5 वोल्ट वहां पे धीरे धीरे चार्ज बिल्डअप होना शुरू होगा जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस में, ठीक है। जब जैसे ही 5 वोल्ट चार्ज बिल्डअप हो गया, इवन इफ यू रिमूव द बैटरी, कैपेसिटर रिमेन्स चार्ज, फिर इट वर्क्स लाइक अ बैटरी, उसको बैटरी की तरह आप यूज कर सकते हो। तो वैसे ही उसमें करंट, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले आ जाता है और वोल्टेज बिल्डअप धीरे धीरे होता है, बराबर। तो कैपेसिटर के टाइम पे आपका वोल्टेज, करंट पहले आता है, वोल्टेज बाद में आता है, तो उसका पावर फैक्टर हम लीडिंग बोलते हैं। पावर फैक्टर हम करंट के रेफरेंस में देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। वोल्टेज को रेफरेंस लेके करंट को हम देखेंगे और बोलेंगे पावर फैक्टर लैगिंग है या लीडिंग है। तो कैपेसिटर के केस में आपका पावर फैक्टर लीडिंग आएगा, इंडक्टर के केस पे आपका पावर फैक्टर लैगिंग आएगा, ठीक है। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है आपका पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन किसको बोलते हैं, कितने टाइम पे आपने एक मोटर 2 घंटा चलाई, तो अगर आपको उसका पावर कंजम्पशन देखना हो तो आप उसका पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम करोगे, तो वो मोटर ने उतना पावर कंज्यूम किया, उतना यूनिट कंज्यूम किया, किलोवाट आवर, बराबर। सो दिस इज अबाउट द पावर, बराबर। जब भी एसी है तो देयर इज अ इंडक्टेंस, देयर इज अ कैपेसिटर, सो पावर फैक्टर प्लेस कम्स इनटू पिक्चर which reduces your actual power। ये एक्टिव पावर जो बोलते हैं, जो वॉट में होता है, दिस इज एक्टिव पावर, इज इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई, ठीक है। यहाँ पे लेटेस्ट कंसीडर कि ये v है, ऊपर i है, और दोनों के बीच में एंगल फाई है, बराबर। तो उसकी जो नीचे वाली एडजेसेंट साइड है उस पे वी आई कॉस फाई, सामने की साइड पे वी आई साइन फाई, और यहाँ पे सिर्फ वी आई। तो ये है आपका एक्टिव पावर, ये है आपका रिएक्टिव पावर, और ये है आपका एप्रेंट पावर, ठीक है। सो पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, दूसरा भी डेफिनेशन है कि उसका रेशियो कॉस फाई, अगर आप इधर देख लोगे तो ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर इज कॉल्ड एज द पावर फैक्टर, बराबर। ये डेफिनेशन से भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। अभी पावर सप्लाई, यू नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पावर सप्लाई, एक है आपका सिंगल फेज, दूसरा है आपका 3 फेज। अगर 3 फेज है तो उसमें 2 टाइप है, इट मे बी डेल्टा कनेक्टेड और इट मे बी स्टार कनेक्टेड, बराबर। दोनों के अपने खुद के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। डेल्टा कनेक्टेड है तो उसमें आप देखो 3 ही वायर लगते हैं, तो ये जो अपना ट्रांसमिशन होता है, जो इतनी बड़ी बड़ी लाइन्स है, वो ट्रांसमिशन लाइन में सिर्फ 3 ही वायर लगेंगे, तो इट इज अगेन सेविंग इन कॉस्ट, बराबर। पावर ट्रांसमिट वही होने वाला है, अगर आपने डेल्टा कर दिया तो आपका सेविंग हो गया मटेरियल का, 3 ही लाइन में आपका पावर ट्रांसमिट हो जाएगा। हमको एज वेल एज वी नीड अ स्टार कनेक्शन ऑल्सो, बिकॉज जब आप जनरेट करोगे आपको अर्थिंग टर्मिनल, न्यूट्रल टर्मिनल चाहिए, तो वो न्यूट्रल टर्मिनल आपको जनरेशन के टाइम पे न्यूट्रल ग्राउंडिंग उसका आपका अर्थिंग करना पड़ेगा, उसके भी एडवांटेज है, तो इसीलिए आपको 4 वायर भी चाहिए, बराबर। सेम वे आपके घर में आपको सप्लाई सिर्फ 230 वोल्ट लगता है, बराबर, और आपका जो पोल माउंटेड ट्रांसफॉर्मर होता है वो आपका 11/430 वोल्ट, 11 kV by 430 वोल्ट का होता है। वो 430 वोल्ट मतलब 480 वोल्ट, वो 3 फेज है, बराबर। उसको अगर आपको सिंगल फेज में कन्वर्ट करना हो तो एक फेज और एक न्यूट्रल लेके आप यू कैन गेट द सप्लाई, बराबर। तो इसके लिए भी आपको स्टार कनेक्शन चाहिए, ठीक है। सो ट्रांसमिशन इज यूजुअली आपका डेल्टा कनेक्शन पे होता है, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन आपका स्टार कनेक्शन पे होता है।
बराबर। लेटर ऑन हम ट्रांसफॉर्मर के बारे में भी देखेंगे कि क्या है ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद ये आपको पता ही है, वी नो द कंडक्टर्स विच करंट कैरी करता है फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वायर आपको पता है, इट इज अ कॉपर एंड एल्यूमिनियम वी आर यूजिंग, बराबर। सिल्वर इज द हाईएस्ट कंडक्टिविटी मटेरियल, बट सिल्वर में कॉस्ट इज वेरी हाई, ओके। So we are using copper with the aluminum to reduce the cost, बराबर। और अगेन रेजिस्टेंस के बारे में एक्सप्लेन किया है, यू नो रेजिस्टेंस इट इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, बराबर। और दूसरा है कि आपका जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। सो देयर इज अ रफ अप्रोक्सीमेशन कि एवरी 25 डिग्री चेंज टेम्परेचर होगा तो उसमें 8 डिग्री का राइज होगा, बराबर। और देखेंगे देयर आर 2 टाइप ऑफ सिस्टम, एक तो अमेरिकन वायर गेज सिस्टम है, बराबर। ये जो अमेरिकन वायर गेज सिस्टम है वो रिवर्स में जाती है। अगर हम 16 गेज लेंगे तो उसके आप देखोगे कन्वर्जन सिर्फ 0.05 होता है, और 000 का 0.46। तो जब स्मॉल इसके लिए वायर चाहिए, स्मॉल साइज इसके लिए और स्मॉल कंट्रोल पर्पस के लिए, तो यू नीड अ अमेरिकन वायर गेज। फॉर द पावर पर्पस यू नीड अ 1000 सर्कुलर मिल सिस्टम, KCMIL, ठीक है। और रिसेंटली MCM, इट इज नोन एज MCM, बराबर। वो हायर साइज के लिए यूज होता है, 250, 300, 400, 500, बराबर। और केबल के डायमीटर थाउजेंड्स ऑफ इंच के उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर। मैंने जो भी इम्पोर्टेंट है मुझे लगा वो मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसे मैंने बात की कि हम AC में से डिस्ट्रीब्यूट करते, हम वी आर यूजिंग अ AC सिस्टम बिकॉज we have a very important equipment in our electrical system, ठीक है, which is known as the transformer. ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म, वोल्टेज एक लेवल दूसरे लेवल पे लेके आता है। सो वी आर यूजिंग वेरी हाई वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन पर्पस, बराबर। क्यों ऐसा करते हैं, तो वी नो दैट P इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे देखा VI cos phi। अगर हम cos phi को कांस्टेंट मेंटेन करें, बराबर, 0.8 से, और हमको पावर अगर कांस्टेंट ट्रांसमिट करना है तो वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ऑपोजिट है। अगर आप वोल्टेज ज्यादा लोगे तो आपका करंट कम हो जाएगा, राइट। तो ये फंडामेंटल यूज करके हमने बहुत हायर वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं, बराबर। जैसे आपने रास्ते में सब स्टेशन देखे होंगे, 220 वोल्ट kV, 400 kV, नाउअडेज वी आर रीचिंग अप टू 1200 kV ट्रांसमिशन वोल्टेजेस। जितना आप वोल्टेजेस ज्यादा लोगे उतना करंट कम कर पाओगे। करंट कम हो गया तो आपके जो इतनी बड़ी बड़ी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस है जिसमें इतने सारे कंडक्टर यूज होते हैं, वायर्स यूज होते हैं, तो वो वायर का डायमीटर आप रिड्यूस कर सकते हो बिकॉज करंट कम है। सो यू डोंट नीड बिगर साइज डायमीटर वायर, बराबर। तो स्मॉल साइज डायमीटर पे आप वायर यूज करके आप पूरा ट्रांसमिशन नेटवर्क कवर कर सकते हो, बराबर। तो जनरली हम जो वोल्टेज ट्रांसमिशन है वो हाई वोल्टेज पे करते हैं, बराबर। जनरेशन जो है, जो जनरेशन में कोई जरूरत नहीं है इतने बड़े बड़े जनरेटर लगाने की, तो हम जनरेशन कम वोल्टेज पे करते हैं। लेट्स से 11 kV और 33 kV पे हम जनरेट करेंगे। वहां पे एक टरबाइन होगा, जनरेटर होगा, बराबर। जनरेटिंग स्टेशन, हाइड्रो पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन, बराबर। अभी तो नाउअडेज रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, तो ये सभी पे हम जनरेशन स्टेशन पर्टिकुलर बात करें तो हम 11 kV पे जनरेट करते हैं। वो 11 kV को फिर हम विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर वी स्टेप अप टू 66 kV, 220 kV. Mostly we are using a very high voltage, 220 kV, 132 kV, 400 kV, 750 kV. उसके बाद अगेन अपने घर में हम इतना यूज नहीं कर सकते, राइट। वी वांट ओनली 230 वोल्ट, ठीक है। अगर बड़े कंज्यूमर है, इंडस्ट्री कंज्यूमर है, तो वो उनको लगता है 3 फेज 400 वोल्ट। और किसी किसी बड़े बड़े कंज्यूमर का खुद का सबस्टेशन होता है जिनको 11 kV सप्लाई चाहिए होता है, तो उनको 11 kV सप्लाई डायरेक्टली दे देते हैं। पोल माउंटेड ट्रांसफॉर्मर जो आपका होता है तो जनरली 11 kV, उसके एक साइड पे 11 kV डेल्टा सिस्टम होता है, 3 वायर्स होते हैं। दूसरे साइड पे वो 430 वोल्ट पे कन्वर्ट करता है
फ्रॉम एक फेस से न्यूट्रल मिलके और आपके घर में फिर 230 वोल्ट आता है, बराबर। तो इस तरह से अपना इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिवाइड, आपके घर पे पावर आता है, जनरेटिंग स्टेशन है। तो ये है आपका ट्रांसफॉर्मर, जो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर ही हम एसी यूज कर सकते हो और इतने लार्ज स्केल पे हम जनरेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बराबर। तो ट्रांसफॉर्मर किस पे वर्क करता है? तो transformer is working on the electromagnetic induction, Faraday's law of electromagnetic induction. वो क्या बोलता है कि whenever there is a change in the when the current carrying conductor अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है उसके उसमें, ठीक है। सो व्हेनेवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो इसीलिए हमने प्राइमरी साइड पे देखो करंट पहले अप्लाई किया है, प्राइमरी वोल्टेज कनेक्ट किया है, करंट फ्लो होना शुरू होगा। वो करंट से ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है वो आपकी फ्लक्स है, ठीक है। वो फ्लक्स कट करेंगे सेकेंडरी साइड पे, सेकेंडरी साइड पे कट करके वो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस करते हैं। तो हम दोनों प्रिंसिपल यूज करते हैं, एक में हम करंट की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस करवाएंगे और वही फ्लक्स का यूज करके हम दूसरे साइड पे उसको लिंक करवा के, मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करवाएंगे, बराबर। सो दिस बोथ आर इंटर रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सभी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में यही प्रिंसिपल यूज होता है। आप ट्रांसफॉर्मर ले लो, आप कोई भी मोटर ले लो, ठीक है, कॉन्टैक्टर कॉइल ले लो, सब में ये फ्लक्स से हम कॉइल को लिंक करवा के ईएमएफ इंड्यूस करके टॉर्क प्रोड्यूस करवा सकते हैं, फोर्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं। मोटर है तो टॉर्क होता है, जनरेटर है तो अगेन मैकेनिकल मोशन से, फ्लक्स के मैकेनिकल मोशन से हम करंट प्रोड्यूस करवाते हैं, बराबर। सो इट्स अ ट्रांसफॉर्मर। अगेन आपके घर में एक सर्विस केबल होगा, फ्यूज कनेक्टेड होगा, आपके घर पे मीटर लगा होगा, ठीक है। एक एमसीबी होगा, सबके घर में एक एमसीबी होता है प्रोटेक्शन पर्पस के लिए, और फिर स्विच बोर्ड में आपको सप्लाई मिलेगा, बराबर। तो ये जनरल आपके हाउस होल्ड, कोई भी इंडस्ट्री, उसका है। ये एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड टू कोई मोटर कंट्रोल सेंटर है, जो पैनल थ्रू मोटर को सप्लाई कैसे जाता है उसका फिगर है, बराबर। Now let us see our topic, which is the electrical component. HVAC जो सिस्टम है उसमें हम कौन कौन से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके फोटोज देखेंगे, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट वी कैन से फैन मोटर्स, कंप्रेसर्स, बहुत सारे टाइप्स के वाल्व्स होते हैं, गैस वाल्व्स होते हैं, सोलेनॉइड वाल्व्स होते हैं, बराबर। ये जब जो होते हैं उनको हम इलेक्ट्रिकल लोड बोलते हैं, बराबर। पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल लोड किसको बोलते हैं कि जो आपका एनर्जी कंज्यूम करे और एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी पे कन्वर्ट करे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को कोई मोशन में कन्वर्ट किया, मोटर ले लिया, ठीक है, तो जैसे टेम्परेचर में कन्वर्ट किया, तो इस सबको लोड बोलते हैं, बराबर। इलेक्ट्रिकल लोड बोलते हैं जो पावर कंज्यूम करता है, जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो HVAC कंट्रोल सिस्टम, इट कंटेन स्विचेस एंड बहुत सारे डिफरेंट कंट्रोल डिवाइसेस भी यूज करता है। सम ऑफ स्विचिंग डिवाइसेस आर द कॉन्टैक्टर्स एंड रिले, बराबर। हम उसमें देखेंगे हाई प्रेशर स्विच भी है, लो प्रेशर स्विच भी है, लिमिट स्विच भी है। देयर आर थर्मोस्टेट्स, फैन साइक्लिक कंट्रोल इज आल्सो देयर, बराबर। लेट अस सी वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूज के बारे में। So आप सबने many of you also know that कि what is fuse, बराबर। फ्यूज के अंदर एक करंट, एक वायर ही होता है, बराबर। नॉर्मल कंडीशन पे वो वायर में नॉर्मल करंट फ्लो होता है, बट जब भी लार्ज करंट फ्लो होने शुरू होगा, फॉल्ट हो गया, लार्ज करंट शॉर्ट सर्किट हुआ, तो वायर मेल्ट हो जाता है और वायर मेल्ट करके वो सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है, ब्रेक कर देता है, बराबर। सो इन बिटवीन देयर इज अ वायर, बराबर, विच इज अ कॉपर इटसेल्फ, है ना, और वो सेम करंट कैरी करेगा नॉर्मल कंडीशन पे। पर जब कभी भी फॉल्ट आ जाएगा, नीचे आपको मेल्टेड फ्यूज भी दिखाया हुआ है, ठीक है। अभी ये जब आर्क प्रोड्यूस होता है, जब वो ये जो करंट को इंटरप्ट करेगा, तो इन बिटवीन देयर इज एन आर्क, तो वो आर्क प्रोड्यूस होने की उसकी हिट दूसरे कंपोनेंट को इफेक्ट ना करे, इसलिए वो एक एंक्लोजर में होता है, बराबर। तो यहाँ पे आपको दिखेगा एंक्लोजर में, इसको बोलते हैं हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, बराबर। अभी देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्यूज, एक होता है क्विक ब्लो और दूसरा है टाइम डिले फ्यूजेस।
पीक फ्लो फ्यूज ऐसा होता है कि तुरंत ही फॉल्ट हुआ, उसके अंदर जो वायर है वो मेल्ट हो गई, सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दिया, आपकी सर्किट को प्रोटेक्शन दे दिया। आपको फिर से शुरू करने के लिए जस्ट यू हैव टू रिप्लेस द फ्यूज, फिर से फ्यूज लगा दो, आपका सर्किट जो नॉर्मली वर्क करना शुरू हो जाएगा, राइट। दूसरा एक होता है टाइम डिले। जैसे फॉर एग्जांपल हम मोटर की बात करें, तो जैसे ही हम मोटर शुरू करेंगे तो इनिशियली बहुत ज्यादा करंट लेता है, इनरश करंट बोलते हैं, स्टार्टिंग करंट विच इज 5 to 7 टाइम्स फुल लोड करंट, बराबर। तो इस टाइम पे अगर आपका फ्यूज मेल्ट हो गया तो आपका सर्किट शुरू ही नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए थोड़ा हम टाइम डिले उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो आफ्टर सम टाइम फिर भी उसमें फॉल्ट रहा तो वो मेल्ट हो जाएगा, अदरवाइज इट विल रिमेन इनऑपरेटिव, बराबर। तो इस तरह से दिस इज द फ्यूज। दूसरा है सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर, स्मॉल स्केल में उसको एमसीबी बोलते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इन द पावर स्टेशन आल्सो लार्ज सर्किट ब्रेकर, 66 kV, 220 kV, 1200 kV सर्किट ब्रेकर भी होते हैं, बड़े बड़े, बराबर। बट अपने पर्पस के लिए 11 kV इज मच, 430 वोल्ट और 11 kV इज इनफ, बराबर। तो उसमें क्या होता है, उसमें फ्यूज की तरह नहीं होता है कि हर बार आपको निकाल के फिर से री इंस्टॉल करना पड़े। उसमें देयर आर फिक्स कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टैक्ट, इस तरह से कॉन्टैक्ट होते हैं, और मूविंग कॉन्टैक्ट सेपरेट हो जाता है फिक्स कॉन्टैक्ट से और आपका सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर से ऑन करने के लिए आपको रीसेट ये कर देना होता है। ये एमसीबी जो है वो एमसीबी में बायोमेटालिक स्ट्रिप होती है, वो जैसे करंट बढ़ता है आपका हीट बढ़ेगा और उसका डिफॉर्मेशन होके वो कॉन्टैक्ट को ट्रिप कर देगा। तो उसमें इस तरह का मैकेनिज्म होता है, ठीक है। एक है आपके स्विचेस, सो स्विचेस जनरली कंट्रोल सर्किट में अभी आप देखोगे आगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्विच, एक तो नॉर्मली ओपन ही रहेगी, एक नॉर्मली क्लोज ही रहेगी, उसको बोलते हैं कंट्रोल स्विचेस, बराबर। इट इज वेरी इजी कंपोनेंट, यू नो, और दे हैव आइदर कंटिन्यूटी और दे डू नॉट हैव। अगर ओपन कंडीशन में है, नॉर्मली ओपन है, तो कंटिन्यूटी नहीं है, बराबर। उसको मेजर आपको वर्किंग है नहीं वो देखने के लिए आपको उसके अक्रॉस में वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा, या तो मल्टीमीटर से आप देख सकते हो। नाउ लेट अस सी वन बाय वन। ये जो फोटो दिखाया है आपको, ये आपका हाई प्रेशर स्विच है, बराबर। तो आपके प्रेशर पे वर्क करता है। वो स्विच नॉर्मली क्लोज रहेगा, जब आपका सिस्टम नॉर्मल वर्क करता है तब वो क्लोज ही रहता है। बट जब कभी भी आपके कंप्रेशन में डिस्चार्ज प्रेशर आपके फैक्ट्री सेटिंग से बढ़ गया है ना, तो वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा और सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा, बराबर। तो इसीलिए उसका नाम है हाई प्रेशर स्विच। इफ योर प्रेशर आपके फैक्ट्री सेटिंग से बढ़ गया तब उसको ओपन हो जाना है, ऑपरेट हो जाना है, बराबर। इसीलिए उसका नाम है हाई प्रेशर स्विच। दूसरा है आपका फ्रीज प्रोटेक्शन थर्मोस्टेट, बराबर। ये एक प्रकार का थर्मोस्टेट है जो आपका टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, सो दैट आपका जो प्रोटेक्शन फ्रॉस्ट को डैमेज ना कर दे, ठीक है। तो इट इज यूज्ड फॉर द कंट्रोलिंग द टेम्परेचर। दूसरा है एक डिस्चार्ज लाइन टेम्परेचर स्विच, बराबर। तो जो गैस टेम्परेचर है वो मेजर करेगा, वो दिखाएगा, और इफ इट इज इंक्रीज बियॉन्ड द लिमिट देन इट विल ऑपरेट एंड डिस्कनेक्ट दैट पार्ट so that you can rectify it, बराबर। एक दूसरा है एक साइक्लिक स्विच। ये साइक्लिक स्विच में क्या होता है, एक ट्रांसड्यूसर होता है, वो भी एक इलेक्ट्रिकल टर्म है। ट्रांसड्यूसर में होता है वो उसका रेजिस्टेंस वेरी करता है एज पर द वोल्टेज, है ना। सो एनी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है, बराबर। तो ये इवेपोरेटर के आउटलेट के नियर लगता है, and that is also it will change its internal resistance with respect to any fault, बराबर। दूसरा है प्रेशर डिफरेंशियल एयर प्रूविंग स्विच। ये स्मॉल एयर प्रेशर और वैक्यूम और चेंजेस इन द एयर प्रेशर सेंस करता है, ठीक है। और फिल्टर्स में अगर डर्टी एयर है, यहाँ पे डक्ट प्रेशर को भी वेरीफाई करता है, और बहुत सारी एप्लीकेशन में नॉर्मली ये भी क्लोज रहता है, बट व्हेनेवर देयर इज अ फॉल्ट इट विल ऑपरेट। कोई कोई स्विच है जो ओपन रहती है और फॉल्ट के टाइम क्लोज होती है, जो रिलेज को ऑपरेट करवाने के लिए, और कोई स्विच है जो पहले से क्लोज रहती है और बाद में ऑपरेट होकर सर्किट को डिस्कनेक्ट करती है। दूसरा एक है फ्लेम रोल आउट स्विच।
ये जो फिगर दिखाई है आपने देखा भी होगा, राइट। तो ये फ्रेम रोल आउट स्विच में क्या है, वो फर्नेस टेम्परेचर कंटिन्यूअसली मेजर करता है, और अगर आपका फर्नेस टेम्परेचर 350 डिग्री फ़ारेनहीट से बढ़ गया, बराबर, तो ये आपको टर्न ऑफ कर देगा आपके फर्नेस को, बराबर। एक और स्विच है जो है आपकी लिमिट स्विच, जो बोलते हैं फैन लिमिट स्विच, वो मोशन को फिर अकॉर्डिंगली, उसमें क्या होता है कि जब वो भी आपका फर्नेस का टेम्परेचर हीटिंग फर्नेस कंट्रोल के लिए होता है, और वो अकॉर्डिंगली हीटिंग के अकॉर्डिंग आपके फर्नेस के ब्लोअर के फैन को टर्न्स ऑन एंड ऑफ करता है, बराबर। दिस कंट्रोल, ये भी आपको सेफ्टी लिमिट बर्नर को ऑन ऑफ करने के लिए अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अगर बहुत ज्यादा होगा तो फैन को ऑन करने के लिए, बराबर, लिमिट स्विच होता है। एक है कैपेसिटर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कैपेसिटर, रिलेटेड टू पावर फैक्टर के बारे में डिस्कस किया, बराबर। सो यहाँ पे कैपेसिटर आपने देखा पावर फैक्टर और वोल्टेज और इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंटली ट्रांसमिट करने के लिए, जैसे पावर फैक्टर लो आता है तो भी हमने देखा कि आपका पावर अच्छे से नहीं यूटिलाइज नहीं होता है, तो हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए भी पैरेलल में कैपेसिटर लगा देते हैं, ठीक है। दूसरा एक कैपेसिटर है, वो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए भी यूज करता है, जैसे मैंने बोला कि कैपेसिटर आप बैटरी की तरह भी यूज कर सकते हो, बराबर, इट वर्क्स एज अ बैटरी, तो इसीलिए ऑटोमेटिक टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करके भी उसको आप यूज कर सकते हो। मल्टीमीटर में यहाँ पे आपको कैपेसिटर का सिंबल होगा, ये आपको रोटरी स्विच के इधर रख के यू कैन मेजर द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। दूसरे है सोलेनॉइड वाल्व्स, बहुत सारे वाल्व होंगे, बराबर। तो ये वाल्व क्या करते हैं, आपके जो रेफ्रिजरेंट है उसको फ्लो को कंट्रोल करते हैं। It is generally a 4-way reversing valve, बराबर, and it will switch modes on and on between the heating and cooling. According to heating and cooling, it directs the refrigerant to for a पर्टिकुलर वर्क, जो भी आपके उसको कहाँ जाना है रेफ्रिजरेंट को, उसका पाथ आप डाइवर्ट कर सकते हो रेफ्रिजरेंट फ्लो को, बराबर। उसमें एक छोटा सा पोर्ट होता है, बैरल होता है, वो बैक एंड फोर्थ होके आपके फ्लो को डायरेक्ट करता है, रेफ्रिजरेंट के फ्लो को, तो इस तरह के बहुत सारे सोलेनॉइड वाल्व्स आपने देखे भी होंगे, ठीक है। दूसरे एक है हीटर्स, ये सब हीटर असेंबली, हीटर इज नथिंग बट अ रेजिस्टेंस, जैसे उसमें वो हीट को आपको आपके हीट को डिसिपेट आउटसाइड रेडिएशन करवाने के लिए एयर और वाटर को पहले तो वो रेजिस्टेंस, उसमें रेजिस्टिव मटेरियल ही होता है, तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, तो वो हीट को रेडिएट आउट करते हैं। दूसरा एक है कि कंप्रेसर को बहुत सारे ऐसे क्रैंक टैंक हीटर होते हैं, बराबर, वो जो आपको ऑयल को गर्म करने में काम में आता है, एंड प्रिवेंट लिक्विड रेफ्रिजरेंट माइग्रेशन को भी प्रिवेंट करते हैं, बराबर। तो इस तरह से आपने हीटर असेंबली देखा होगा, ठीक है, विच इज अगेन नथिंग बट आई स्क्वायर आर, इस पे ही काम करते हैं। आई स्क्वायर आर लॉसेस के अकॉर्डिंग बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, करंट फ्लो होता है तो वो गर्म जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर में हमने बहुत सारी बार डिस्कस कर लिया। आपकी कंट्रोल वोल्टेज सर्किटरी जो है, कंट्रोल सर्किट, वो बहुत लो वोल्टेज पे काम करती है, तो ये जो फोटो दिखाया है वो आपका स्मॉल ट्रांसफार्मर दिखा है, जो आपके 230 वोल्ट को 24 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करे, बराबर, जो कंट्रोल पर्पस में लगता है 24 वोल्ट, तो उसको ये छोटे ट्रांसफार्मर से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बराबर। दूसरा एक है रिले। रिले क्या होता है, रिले में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कांटेक्ट इन द रिले, व्हिच इज कॉल्ड एज द, बहुत सारे मल्टीपल सेट ऑफ नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज्ड कांटेक्ट रहते हैं, बराबर। देयर आर 2 टाइप्स, एक रिले होता है और एक कांटेक्टर होता है, दोनों का पर्पस सेम ही है, इट इज लाइक अ स्विच ओनली, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड स्विच, बराबर। और बट रिले जो होता है वो स्मॉल पावर के लिए यूज होता है। आई शो यू द वीडियो ऑफ दिस, जस्ट कैसे ये वर्क करता है, वहां पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग ही रिले का वीडियोस दिखाया है, बराबर। जस्ट अ मिनट, इट विल टेक फ्यू मिनट्स। यहाँ पे लेट अस सी द कंस्ट्रक्शनली, तो एक कॉइल होती है, वो कॉइल में करंट पास होके फ्लक्स प्रोड्यूस होता है,
और फ्लक्स प्रोड्यूस होने से वो एक प्लंजर जो होता है वो प्लंजर को अट्रैक्ट करके उसके मूविंग कांटेक्ट को दूसरी साइड पे कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से उसका मैकेनिज्म है। अगर वीडियो नहीं ऑपरेट हुआ तो आई विल शो यू लेटर ऑन एट द लास्ट, बराबर। बट उसका सिंपल प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है कि बिकॉज ऑफ द फ्लक्स फोर्स प्रोड्यूस होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और वो टॉर्क से अट्रैक्शन से आपके एक साइड पे स्विच को वो अट्रैक्ट करके दूसरी हेलो लागे છે મેડમ ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયા છે। રાજેન્દ્રભાઈ हेलो રાજેન્દ્રભાઈ हाँ प्रियेशભાઈ, મેડમ કનેક્ટ થાય છે એમને ત્યાં ઇન્ટરનેટ ને એક્સેસિબિલિટી થોડીક ઓછી છે, કનેક્ટ થાય છે। ઓકે ઓકે हेलो। હા મેડમ हाँ सर, वच्चे डिस्कनेक्ट થઈ ગયું હતું, હવે આવે છે અવાજ? હા અવાજ આવે છે। ઓકે, हेलो। હા ઓકે હવે આવી ગયું શેરિંગ આવી ગયું સ્ક્રીન શેર થાય છે। સર આવતું તું ને બરાબર, એટલે एक्चुअली ખબર ના પડી, ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયું વચ્ચે। હા ओके ओके, सो नेक्स्ट कंपोनेंट स्टार्टर है, जो मोटर के स्टार्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है, बराबर। एट द स्टार्ट मोटर बहुत ज्यादा करंट लेता है, बराबर, तो इसके लिए हम एडिशनल रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करते हैं इन द मोटर सर्किट विद द हेल्प ऑफ स्टार्टर। धीरे 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 सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेजिस्टेंस जैसे शुरू किया एकदम हाई रेजिस्टेंस होगा, धीरे धीरे वो स्लाइड करते करते वो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा और फिर हम उसको पूरा रेजिस्टेंस निकाल देंगे। तो वो उसमें जो इनिशियल रेजिस्टेंस इंक्लूड करने के लिए ये हायर करंट को कंपनसेट करने के लिए स्टार्टर होता है। अलॉन्ग विद द स्टार्टिंग पर्पस स्टार्टर में ओवरलोड प्रोटेक्शन भी होता है। जब भी मोटर में ओवरलोड हुआ तो ऑटोमेटिक एक कांटेक्ट होता है, वो अट्रैक्ट होके दूसरे कांटेक्ट के साथ बना के उसको क्लोज कर देगा और वो सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा। तो इसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन भी होता है।
मोटर आपके इसमें इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। और स्टार्टर में देर आर 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, बहुत सारे ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, डिफरेंट टाइप्स के स्टार्टर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद है हम कहाँ मोटर यूज करते हैं, तो आपके कंप्रेसर में, फैंस में, पंप्स में, इस सब जगह पे हम मोटर्स यूज करते हैं, विच इज ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, और मोटर में देर आर 2, एक स्टेटर होता है, 1 इज रोटर। स्टेटर में हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे, so that electric supply, the flux will produce, that flux cuts the rotor circuit and EMF is induced and torque is produced in the rotor and rotor starts rotating। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल से ही ये यूज होता है। ठीक है, उसके बाद है टेम्परेचर सेंसर, इसके नाम ही है बराबर, वो आपके टेम्परेचर को सेंस करके इंडिकेट करता है कि कितना टेम्परेचर है। उसमें RTD जनरली भी यूज्ड, RTT बराबर। और कौन सा, दिस सेंसर्स आर मेड अप ऑफ प्योर मेटल एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वी नो कि जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो वही प्रिंसिपल पे इट विल वर्क, राइट। देयर आर थर्मिस्टर नाम का आपका ये टेम्परेचर सेंसर है। थर्मिस्टर का मीनिंग है थर्मल प्लस रेजिस्टेंस बराबर। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर, एक है PTC एंड NTC। PTC थर्मिस्टर ऐसा है कि उसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, और NTC मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट बराबर, जो आपका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम होती है, उल्टा होता है, तो उसको बोलते हैं NTC। जब आपका टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर्स बराबर। अभी यहाँ से हमारा खत्म हुआ कि कितने कितने कंपोनेंट्स है, ये सब आपने कंपोनेंट देखे। अभी ये कंपोनेंट्स को स्कीमेटिक में कैसे दिखाते हैं, वायरिंग डायग्राम में कैसे दिखाते हैं, वो भी आपको जानना उतना ही जरूरी है। तो आपका पार्ट नंबर 4 इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक बराबर। कोई भी आप दो यू आर मैकेनिकल इंजीनियर, अगर कोई फॉल्ट होता है तो जनरली आपके फॉल्ट इलेक्ट्रिकल रिलेटेड होते हैं बराबर। तो वो फॉल्ट को आपको समझने के लिए यू शुड नो कि कौन कौन से ये जो कंपोनेंट है उसके कौन से सिंबल्स है बराबर, उसका स्कीमेटिक किस तरह से डिजाइन किया है। अगर वो आप समझ लो तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू रेक्टिफाई द फॉल्ट बराबर। और आप अगर पूरे स्कीमेटिक डायग्राम को एक साथ में देखोगे तो इट वुड बी वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। तो सिंपल वे क्या है, वी हैव टू ब्रेकिंग इट डाउन इनटू अ स्मॉलर पार्ट्स, और आपको वो स्मॉलर पार्ट को सिर्फ स्टडी कर लेना है ना, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल अगर हम ले तो हमने पुश बटन से मोटर स्टार्ट एंड स्टॉप करवाया है, ऐसा कोई एक डायग्राम होगा, तो वो पहले आप समझ लो कि वो क्या बता रहे हैं, किस तरह से वायरिंग कहाँ से किया गया है बराबर। सो इट वुड बी वेरी इजी। तो कौन से हम बेसिक स्कीमेटिक में कंपोनेंट पढ़ेंगे वो पहले देखेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे पावर सप्लाई, फिर वो पावर सप्लाई का पाथ कौन सा है, ठीक है। फिर हम समझेंगे कि लोड को कैसे कनेक्ट करते हैं, फिर स्विच और स्विच के कंपोनेंट को जो इंटरप्ट करते हैं, आइदर कनेक्ट करते हैं और इंटरप्ट करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, और बाद में हम देखेंगे उसके लेजेंड क्या क्या है, ठीक है। सो ये स्कीमेटिक को समझने के लिए आपको क्या क्या समझना जरूरी है, तो पहले तो कितने कितने सिंबल्स यूज किए हैं स्कीमेटिक्स में, राइट। उसके बाद आपको समझना है कितने कितने टाइप्स के वायरिंग डायग्राम है, वो वायरिंग डायग्राम के कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से है, और उसके बाद में हम देखेंगे उसके लोकेटर्स। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल सिंबल्स देखेंगे, उसके समझेंगे कि क्या क्या है उसके इम्पोर्टेंस बराबर। तो सिंबल्स क्या है, तो एक पिक्चर देखते हो, पिक्टोरियल रिलेशनशिप है बराबर। यही आपको बाजू में देखो बायोमेटालिक स्ट्रिप, ट्रांसफॉर्मर, थर्मोस्टेट, वो आपको डायग्राम में दिखाना वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो उसको दिखाने के लिए हम वायरिंग डायग्राम में उसके बाजू में उसके स्मॉल सिंबल्स दिखाया है। तो जब कभी भी ये सिंबल है दैट मीन्स ये शो कर रहे हैं आपके वो पर्टिकुलर पार्ट को, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे पावर सप्लाई। तो ये देखो आपके पावर सप्लाई के सिंबल है, डिफरेंट वे में आप उसको मेजर कर सकते हो। कोई इतना डिटेल में दिखाता है, कभी आपको L1, L2, L2 दिखाया है, मतलब ये पावर सप्लाई है। तो यहाँ पे ऊपर रेटिंग लिख दिया होता है कि 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज AC सप्लाई, दैट मीन्स इतने सप्लाई का पावर है बराबर।
वायरिंग डायग्राम में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आप ये फर्स्ट वाली फिगर देखोगे तो यहाँ पे देखो ब्लैक कलर का डार्क पॉइंट दिखाया है, बराबर। दैट मीन्स ये जो बी वायर है वो ए के साथ यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। अगर सिंपली कनेक्शन नहीं होगा, क्रॉस ओवर होगा, तो इस तरह से क्रॉस ओवर दिखाएंगे। देखो आप 2 नंबर की फिगर में हाफ राउंड दिखाया है, मतलब उसका वहां कनेक्शन नहीं है। ये वायर का कनेक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। कभी कभी ये राउंड भी नहीं दिखा के सिंपल कनेक्ट भी कर सकते, जैसे फर्स्ट वायर है यहाँ पे सिंपल कनेक्ट कर दिया है। कोई लोग डार्क और लाइट से, कलर कोड से डिफाइन करते हैं। जैसे यह जो थिक वायर दिखाया है, मतलब ये कोई थिक केबल है जिसका डायमीटर ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सप्लाई का है, ठीक है। स्विचेस, डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस, कंट्रोल स्विचेस जो बोलते हैं उसका है। तो देखो ये लिमिट स्विच, राइट हैंड साइड के कॉर्नर में देखो लिमिट स्विच है, तो इस तरह का सिंबल है। ये नॉर्मली ओपन लिमिट स्विच है, दिस इज लिमिट स्विच नॉर्मली क्लोज्ड। यहाँ पे प्रेशर स्विच है, आप देख सकते हो, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज। एंड टाइम डिले स्विच का सिंबल भी थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे फ्यूजेस है, सोलेनॉइड कॉइल है, एनो कॉन्टैक्ट, एनसी कॉन्टैक्ट, पुश बटन्स, तो ये सभी डिफरेंट डिफरेंट सिंबल है स्विचेस की। अगेन स्विचेस में 2 टाइप है, आइधर आप राइज पे ओपन करवाओ और फॉल पे। तो ये जो टेबल में दिखाया है जिसमें आप देख सकते हो ये प्रेशर स्विच है, तो प्रेशर स्विच जनरली क्लोज रहती है, ठीक है। नॉर्मली क्लोज मतलब वो नॉर्मल कंडीशन में जब आपका सर्किट अच्छे से वर्क कर रहा है तो वो क्लोज रहेगी। जब कभी भी फॉल्ट आता है वो ओपन होगा, तो विद द हेल्प ऑफ सम बायमेटालिक स्ट्रिप होगी, either it operate mechanically or it will operate electrically, बराबर। हाई प्रेशर से ये वाला जो है वो राइज हो जाएगा, तो ओपन ऑन राइज, ठीक है। ये टेम्परेचर स्विच भी ओपन ऑन राइज, तो जब कॉन्टेक्ट राइज होगा तब वो ओपन हो जाएगा। इट इज अ नॉर्मली क्लोज्ड वन। अगेन ये भी नॉर्मली क्लोज स्विच है, ये ओपन होती है फॉल के मेथड से, बराबर। तो नीचे होके फॉल होके वो ओपन हो जाएगी, बराबर। ये आपका देखो नॉर्मली ओपन स्विच है, नॉर्मल कंडीशन में ओपन रहेगी, जब कभी भी फॉल्ट आता है वो क्लोज होके फिर कंट्रोल सर्किटरी को इंडिकेट करेगा कि फॉल्ट आया है, तो नॉर्मली इट इज ओपन वन, ठीक है। तो ये क्लोज ऑन राइज मेथड पे क्लोज हो रही है, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट सिंबल्स ऑफ द स्विचेस एंड दीज आर द डिफरेंट वर्किंग, आइदर ओपन ऑन राइज, ओपन ऑन फॉल, क्लोज ऑन राइज और इट मे बी क्लोज ऑन फॉल, ठीक है। ये है आपका लोड का सिंबल। जैसे हमने बात की कि लोड क्या है, जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं हीटर। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है, इल्यूमिनेशन देता है, जिसको हम बोलते हैं लैंप, ठीक है। एक है ट्रांसफॉर्मर, जो एक वोल्टेज लेवल को दूसरे वोल्टेज लेवल पे ट्रांसफॉर्म करता है, 24 वोल्ट पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर दिखाया है। एक है मोटर, जो इलेक्ट्रिसिटी को रोटेशन में कन्वर्ट करता है। तो ये सभी ही लोड्स है जिसको जो पावर कंज्यूम करते हैं, है ना। तो ये सब लोड के डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स आके बने, ये सर्किट डायग्राम से दिखाया है। लिमिट स्विच है विच इज ऐसा सिंबल है, मतलब इट इज नॉर्मली क्लोज्ड, जब फॉल्ट आ जाएगा वो ओपन हो जाएगा। ये थर्मोस्टेट है, ये गैस वाल्व है, दोनों को डायग्राम के फॉर्म में यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ दिखाया है, यहाँ पे शॉर्ट मेथड में दिखाया है, ठीक है। अभी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द वायरिंग डायग्राम। एक है आपका लेडर डायग्राम, एक है आपका लाइन डायग्राम और दूसरा है इंस्टॉलेशन डायग्राम। तो लर्न लेडर डायग्राम क्या होता है। तो ये आपका लेडर डायग्राम में क्या होता है, हर एक कंपोनेंट को लेडर के फॉर्म में दिखाया है। सीढ़ियां में कैसा होता है, वैसे जैसे कंप्रेसर है तो एक सीढ़ी में दिखाया, एक इसमें दिखाया है, कंडेंसर को दिखाया है, फैन मोटर्स को, इंडोर फैन मोटर्स को एक लाइन पे दिखाया है। दोनों साइड पे आपके मेन सप्लाई लाइंस कनेक्टेड होके, और लेडर फॉर्म में सभी कंपोनेंट और उसके रिलेटेड सर्किटरी ऑल आर इन द लेडर फॉर्म, बराबर। तो इस टाइप के वायरिंग डायग्राम को हम लेडर डायग्राम बोलते हैं और स्कीमेटिक्स भी बोल सकते हैं, बराबर। सो फर्स्ट टाइप इज द आपका लेडर डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम। सेकेंड वन इज द लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम जैसा आपका कनेक्शन है आपके एक्चुअल सिस्टम में वैसे ही यहाँ पे दिखाया है, बराबर। तो आपको उसको ट्रेस करके करते आपको देखना है
कहाँ पे फॉल्ट आया है और कौन से कंपोनेंट में फॉल्ट है, बराबर। सो द मेन डिफरेंस कि किस तरह से लेडर डायग्राम में सभी सिर्फ कंपोनेंट और उसके रिलेटेड फंक्शंस लेडर के फॉर्म में दिखाया है, जो आपका लाइन डायग्राम है वो कंपोनेंट जहां एज इट इज कनेक्टेड है एक्चुअली वैसे दिखाते हैं। नाउअडेज अभी तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको दोनों ही डायग्राम दे देते हैं, सो इट वुड बी वेरी इजी टू यू टू अंडरस्टैंड। अभी है इंस्टॉलेशन डायग्राम। ये इंस्टॉलेशन डायग्राम जनरली कॉन्ट्रैक्टर आपको देते हैं वो इंस्टॉलेशन पर्पस के लिए, एंड इट इंक्लूड्स मोस्टली अ टर्मिनल बॉक्स। जहां पे टर्मिनल आते हैं तो उसका टर्मिनल बॉक्स के कनेक्शंस दिखाए हैं, तो ये है इंस्टॉलेशन डायग्राम, बराबर। अभी जैसे आप कोई रास्ते पे जा रहे हो और आपको मैप फॉलो कर रहे हो, राइट, तो मैप फॉलो करते हो तो आपको फिर मैप में कभी पता चलता है रिवर आया है, रिवर का सिंबल दिया है, देन कोई जंक्शन आ रहा है, कोई स्टॉपेज आ रहा है, तो ये सभी मैप में आपको पता चल जाता है। वैसे ही आपके वायरिंग डायग्राम को उसी तरह से आपको देखना है कि कहाँ कहाँ ये जो लाइन डायग्राम है उसको उसी तरह से फॉलो करना है, कहाँ कहाँ यहाँ पे कॉन्टैक्टर कॉल आई, उसके बाद उसका कनेक्शन कंप्रेसर के साथ है, उसके बाद कंडेंसर के साथ है, तो यू हैव टू ट्रेस इट आउट, बराबर। अभी ये जो स्कीमेटिक डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। एक है आपके साइड बाय साइड कॉन्फ़िगरेशन, बराबर, जिसमें लोड साइड है, लाइन साइड है, जो भी आपके हैवी कंपोनेंट है, लोड कंपोनेंट है, हीटर, मोटर, बराबर, तो वो सब राइट एंड एक्सट्रीम राइट साइड पे कनेक्ट करते हैं। और जो भी कंट्रोलर्स होते हैं जैसे आपके रिले, कॉन्टैक्टर, उनको लाइन साइड पे कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन हम लाइन बाय साइड कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। दूसरा एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसको अप एंड डाउन बोलते हैं। वो अप एंड डाउन कॉन्फ़िगरेशन में जो भी हाई वोल्टेज कंपोनेंट है, जैसे कंप्रेसर है, मोटर है, फैन मोटर्स है, उन सबको ऊपर की साइड ट्रांसफॉर्मर को इंटरमीडिएटर बनाते हैं और उसके एक साइड पे जो 240 वोल्ट है उसके ऊपर की साइड हाई वोल्टेज सेक्शन लगाते हैं और नीचे की साइड हम कंट्रोल सर्किटरी 24 वोल्ट पे लो वोल्टेज सर्किटरी। तो ऐसे जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम बोलते हैं अप एंड डाउन कॉन्फ़िगरेशन, बराबर। एक होता है लोकेटर्स, बराबर। जैसे आपने इलेक्ट्रिकल आपने मैप देखा होगा, अपने इंडिया का मैप, तो उसमें बाजू में नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स दिए, तो इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। किसी को बताना है तो आप देखो 7 नंबर पे एक कॉन्ट्रैक्टर है C1, बराबर, और वो C1 के साथ हम कनेक्टेड है कंडेंसर कंप्रेसर। तो इस तरह से नंबर्स से आप इजीली, बहुत बड़ा डायग्राम है तो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड, तो इसीलिए यहाँ पे नंबर सिस्टम दिया होता है, उसको बोलते हैं लोकेटर्स। और ये है लेजेंड्स, बराबर। हर एक ड्राइंग में लेजेंड्स दिए हुए होते हैं, दैट विल इंडिकेट शॉर्ट फॉर्म कभी यूज किया है कोई कंपोनेंट का, या तो कहीं पे कुछ नोट दिया है, वायरिंग, कोई मटेरियल दिखाया है, ग्राउंड दिखाया है, तो ये सभी थिंग यू विल बी गेटिंग फ्रॉम द लेजेंड्स, ठीक है। तो ये है आपके लेजेंड। अभी लास्ट टॉपिक है आपका, इट इज ऑफ वेरिएबल स्पीड ड्राइव, ठीक है। आपका जो मोटर है, जैसे हम सिंगल फेज मोटर यूज करते हैं, वो मोटर अभी आपका कांस्टेंट स्पीड पे वर्क करता है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। अगर ऐसा नहीं करके अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी कर दे, डिफरेंट स्पीड पे हम उसको ऑपरेट करवाएंगे, तो आपका पावर कंजम्पशन रिड्यूस होगा, आपका एफिशिएंसी इंप्रूव होगा, ठीक है। आपका मोटर का ये है 120F/P, स्पीड का फॉर्मूला है 120F/P। P स्टैंड्स फॉर द पोल्स, F स्टैंड्स फॉर द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये जो मोटर का स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। अगर हम वो फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल कर दे तो हमारा स्पीड भी वेरी हो जाएगा। यही प्रिंसिपल से हम वेरिएबल स्पीड ड्राइव को ऑपरेट करवाते हैं। तो वो करने के लिए, ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑपरेट करवाने के लिए हमने एक रेक्टिफायर यूज किया है। सो रेक्टिफायर का काम है कि आपके एसी को डीसी में कन्वर्ट करे, ठीक है। उसके बाद अगेन वी आर यूजिंग ये डीसी को अगेन एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम इन्वर्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है, हमने वेरिएबल स्पीड ड्राइव, ड्राइव मीन्स मोटर, वेरिएबल स्पीड मोटर बनवाया है। सो ये देखो यहाँ पे उसका ये दिखाया है किस तरह से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे एक साइड पे रेक्टिफायर है जो आपके 3 फेज सप्लाई है, उसको कन्वर्ट करता है डीसी में, बराबर। ये डीसी पल्सेटिंग डीसी है, वो पल्सेटिंग डीसी को फिल्टर से
आप कंटिन्यूअस डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपको फ्रीक्वेंसी डिफरेंट मिल गया। वही जो फ्रीक्वेंसी को आप अगेन इन्वर्टर से एसी में कन्वर्ट करवाओ। तो विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर यू कैन ऑब्टेन अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल स्पीड। ठीक है, सो यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया है कि हमको पता है कि इंडक्शन मोटर की स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। इफ वी वेरी द फ्रीक्वेंसी और power supplied, again P is equals to omega into T, and omega is 2 pi f, right? So again power is also depend upon the speed, it is also depend upon the frequency, बराबर 2 pi n, तो ओमेगा का मीन्स। तो इस तरह से अगर हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करते, हम स्पीड को वेरी करते, तो हम पावर भी वेरी कर सकते हैं, तो एफिशिएंसी विल इंप्रूव। ठीक है, तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली VSD डन। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो आपके कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एसी पावर को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके मोटर को फिर हम फेड अप करते हैं, तो अकॉर्डिंगली मोटर की स्पीड वेरी होती है। यहाँ पे एक PWM टेक्निक दिखाई है जिसको बोलते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पल्स की विड्थ वेरी करके हम स्मूथ और रेक्टिफाइड और सैंपल्ड करके फिर अकॉर्डिंगली हम आउटपुट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस आर द क्यों हम चाहिए, तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, बराबर। हमारी जो स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर है वो कांस्टेंट स्पीड पे काम करती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी रिक्वायर्ड लोड्स आर डिफरेंट, आपके लोड्स डिफरेंट है, तो आपको स्पीड भी वेरी चाहिए, डिफरेंट चाहिए, बराबर, सो दैट आपका फुल लोड पावर कंजम्पशन कम हो। ठीक है, सो दिस पावर शॉर्टफॉल मींस एनर्जी वेस्ट हो रही है। अगर आप एक ही मोटर लगा दो कांस्टेंट स्पीड वाली, तो हर एक उसमें वही ऑपरेट होगा, तो आपका पावर वेस्ट होगा। ठीक है, और दैट विल जनरेट एक्सेसिव ग्रीन हाउस गैसेस। सो वो रिड्यूस करने के लिए हमने वेरिएबल स्पीड ड्राइव कॉन्सेप्ट, फ्रीक्वेंसी ड्राइव यूज करते हैं, जो विच इज वेरी वाइडली यूज्ड इन द HVAC एप्लीकेशन, बराबर। तो ये क्या अलाउ करता है, लोड सच एज फैंस एंड पंप्स ड्रिवन बाय AC इंडक्शन मोटर टू ऑपरेट अ वाइड रेंज ऑफ स्पीड। बहुत सारी स्पीड में वो उसको ऑपरेट करवा के हम इस तरह से इकोनॉमिकल ऑपरेट करवा सकते हैं। दिस ऑल आर द एडवांटेज ऑफ द वेरिएबल स्पीड ड्राइव। वो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, ऑलमोस्ट 50% एफिशिएंसी में हम सेविंग कर सकते, इम्प्रूव कर सकते, सॉरी। अगेन इट विल इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑल्सो। जो इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर का इश्यू होता है, उसका पावर फैक्टर लैगिंग है बहुत सारी, हमने उसमें पूरा कॉइल यूज किया है, स्टेटर में भी 3 फेज वाइंडिंग बनाई हुई है, तो जितना हम इंडक्टेंस यूज करें उतना आपका करंट लैगिंग होता है, तो वो इम्प्रूव करने के लिए हमको कैपेसिटर बैंक लगानी पड़ती है पैरेलल में, पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ऑलरेडी आपके पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है, so you don't need all these things, बराबर। अगेन इट प्रोवाइड्स सॉफ्ट स्टार्टिंग, जो आपके स्टार्टर का इश्यूज होता है, इनरश करंट लेता है, यहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टिंग हो जाता है। अगेन लेस मैकेनिकल स्ट्रेन, रिड्यूस वोल्टेज ड्रॉप, बराबर, उसको ओवर स्पिन कैपेबिलिटी भी है। ठीक है, और डिफरेंट एलिमिनेट, आपको जो कॉमन स्पीड है तो आपको एक्सपेंसिव मैकेनिज्म लगाना पड़ता है, थ्रोटलिंग मैकेनिज्म, तो वो सब यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पे दिखाया है, अगर आपका सिंपल मोटर है और आप डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज करते हो तो इट विल कैरी 1000 एम्पियर करंट। सॉफ्ट स्टार्टर यूज करते हो जिसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं तो वो 200 एम्पियर। बट इफ यू यूज अ वेरिएबल स्पीड ड्राइव, your starting current is very much reduced, it is of about 100 amperes only, right? So this all are about the advantage of the VSD. So this is all about today's lecture regarding the electrical component used, ठीक है, regarding electrical schematics used, कैसे आपके power supply आते हैं, ठीक है। I hope कि सबको समझ में आया है। If you have any question, please do ask. Hello. कोई ना कहीं क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन एंड आंसर में लग दो। Yogin sir, vote of thanks માટે please. Thank you very much, Professor Gopi madam. છે કોઈને ક્વેશ્ચન છે? ટેક્સ્ટમાં સાઉન્ડ આવે છે? હેલો, ના કોઈ ક્વેશ્ચન નથી યોગિન ભાઈ। okay. Thank you very much madam for
attending this webinar, Rajkot sub-chapter, on behalf of President-elect. Thank you very much. आई होप सबको समझ में आया होगा. मुझे लग रहा है બધાને ખબર પડી હશે. કોઈને ક્વેશ્ચન નથી તો બે હોઈ શકે કાં તો બધાને બધું ખબર પડી યા તો કોઈને કશી ખબર ના પડી. એનીવેઝ મેડમ, તમારો જે સેશન હતો એ ઘણો ઇન્ટરેક્ટિવ હતો અને ઘણી બધી પ્રોડક્ટ્સ એવી છે કે જેને અટેન્ડિસ છે એને ખ્યાલ નહીં હોય, પણ અત્યારે તમારા સેશનમાં એટલું ઈઝી લેંગ્વેજમાં હતું કે એ લોકોને એક્સપ્લેનેશન પૂરેપૂરું મળી ગયું છે. ઓકે સર. એનીવેઝ તો પણ જો કંઈ પણ ડાઉટ હોય તો યુ કેન તમે મેલ કરી શકો છો એની ટાઈમ. કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય, કોઈ પણ વસ્તુ જાણવું હોય, આઈ વિલ શેર ધ પીપીટી ઓલ્સો. પીપીટી નું પ્રેઝન્ટેશન પણ હું આપી દઈશ શુક્લા સરને. થેન્ક યુ વેરી મચ ઈશરે ટીમ, અમદાવાદ ટીમ, રાજકોટ ટીમ for inviting me. Thank you very much, ma'am. Shukla sir. એક ક્વેશ્ચન આવ્યો છે, રીડ કરું છું. થેન્ક યુ શુક્લા સર, મોટિવેટ કર્યું મને લેક્ચર આપવા માટે. મને પણ મજા આવી લેક્ચર આપવામાં અને સ્ટુડન્ટ પણ કન્ટિન્યુઅસ રહ્યા, મતલબ પાર્ટિસિપન્ટ આર નોટ, મતલબ અધરવાઇઝ ઓનલાઈનમાં અમે ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે કે બધા લેફ્ટ પણ થઈ જાય છે, પણ દે આર સ્ટિક ટુ ધ લેક્ચર. આઈ હોપ કે સબને ખબર પડી છે બધાને. થેન્ક યુ. ક્વેશ્ચન છે મેડમ. હા સર. રૂપેશભાઈ પરીખ પૂછે છે સમથિંગ અબાઉટ સિંગલ ફેઝ પ્રિવેન્ટર. સિંગલ ફેઝ પ્રિવેન્ટર વિશે હા એકચ્યુઅલી હા એક પ્રકારનું પ્રોટેક્શન સિસ્ટમ છે જે મોટરમાં યુઝ કરવામાં આવે છે. જ્યારે આપણી 3 ફેઝ મોટર હોય છે ને તો 3 ફેઝ પર એ ઓપરેટ થવું જોઈએ. બટ સમટાઈમ્સ શું હોય છે, સપોઝ કોઈ એક ફેઝમાં પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો અને ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયું તો એના માટે પ્રિવેન્ટર આપવામાં આવેલું હોય છે કે બાકી બે જે વાઇન્ડિંગ હોય, 3 ફેઝ હોય તો એમાં 3 વાઇન્ડિંગ હશે RYB, બરાબર. અગર આવું કોઈ પ્રોબ્લેમ થયો કે એક ફેઝમાં પ્રોબ્લેમ આવ્યો તો શું થઈ જશે, બીજી બે વાઇન્ડિંગ પર લોડ પડશે, ઓવરહીટ થશે, લોસીસ વધશે. તો એ વસ્તુ ના થાય તો એના માટે એક પ્રકારનું રિલે હોય છે. તો એ જે રિલે ઓપરેટ થઈ જાય છે અને મોટરને ડિસ્કનેક્ટ કરને છે, તો એનું નામ છે સિંગલ ફેઝ પ્રિવેન્ટર, કે 3 ફેઝ મોટર સિંગલ ફેઝ પર ના ચલાવે એના માટે. અને હવે તો બધા ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસીસ આવી ગયા છે, પ્રોગ્રામિંગ હોય છે, તો હવે તો રિલે ઓટોમેટિક ઓપરેટ થઈને ડિસ્કનેક્ટ કરી નાખે છે. એટલે હવે ઇલેક્ટ્રોમિકેનિકલ રિલે પણ બહુ ઓછી યુઝ થાય છે નાઉએડેઝ. મોસ્ટ ઓફ ધ રિલે પણ બધા આપણા ઇલેક્ટ્રોનિક બેઝ થઈ ગયા છે કે જેમાં માઇક્રો કંટ્રોલર હોય છે એન્ડ પ્રોગ્રામિંગ બેઝ પર વર્ક કરે છે. તો એમાં પ્રોગ્રામિંગ જ કરેલું હોય છે. હવે કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન ના હોય તો આઈ થિંક બધાના ફીડબેક જ. યસ સર, યસ. હેલો. હવે સર ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી લો સર. ના, કોઈ ક્વેશ્ચન નથી. ઓકે, તો સર તમારા તરફથી રાજકોટ ટીમમાંથી આપણે કોઈને વિનંતી કરીએ કે બીજું કઈ ઇનપુટ હોય, વોટ ઓફ થિંગ્સ. Yes, thank you so much, madam. Almost યોગીનભાઈ મેડમને વોટ ઓફ થેન્ક્સ કરી આપ્યું છે. તેમ છતાં રાજકોટમાં જ્યારે આપણો પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ થયો ત્યારે મેડમે વાત કરી કે મેડમના ઘણા બધા રિલેટિવ્સ રાજકોટ રહે છે, તો આટલો ઇન્ટરેક્ટિવ પ્રોગ્રામ છે તો અમે રિક્વેસ્ટ કરશું કે ઇન ફ્યુચર જ્યારે બી સિચ્યુએશન નોર્મલ થાય મેડમ રાજકોટ વિઝિટ કરે અને આપણને ફિઝિકલી પણ એક આવો ટેકનિકલ પ્રોગ્રામનો બેનિફિટ મળે અને આગળ પણ આપણી સાથે જોડાયેલા રહે. થેન્ક યુ સો મચ મેડમ. થેન્ક યુ સર, ડેફિનેટલી. હા, ચોક્કસ કોઈ પ્રોગ્રામ હશે તો ચોક્કસ ઇન્વાઇટ કરશો. આઈ વિલ ટ્રાય ટુ કમ. ઓકે, અને હાર્દિક સર તમે પણ તમારો ટાઈમ આપ્યો આજે રાજકોટ ચેપ્ટરને અને સારું એવું અમારા માટે પ્રોગ્રામનું અરેન્જમેન્ટ કરી આપ્યું. ચોક્કસ સર. આપણો આ જીએમ પટેલ સાહેબ છે, પછી રોહિત દવે સાહેબ છે, એટલે બધા જેટલા અમારા ફેકલ્ટી. સર તમારો અવાજ બહુ બ્રેક થાય છે ડ્યુ ટુ નેટવર્ક. અને અમારા ચેપ્ટરમાં સર હું સળંગ 12 વર્ષથી CWC મેમ્બર છું, એટલે સો આઈ એમ મચ એફિલિએટેડ વિથ ઈશરા. એટલે અમારો સ્ટુડન્ટ ચેપ્ટર પણ પહેલા LD માં હતો ત્યારે પણ બહુ સરસ 10 વર્ષ ચાલ્યું. ચલો, થેન્ક યુ સર. રાજકોટ ચેપ્ટરના તમામ સભ્યોને, જાદવભાઈ, નાના, યોગીનભાઈ, યોગેશભાઈ. થેન્ક યુ. ઓકે, થેન્ક યુ સરજી.
થેન્ક યુ રાજેન્દ્ર Thank you. સર. Thank you very much, madam. Thank you, madam. Nice session. Thank you. Thank you all of you Okay, team for giving me Rajkot. opportunity. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, sir. Team Thank you, Rajkot. sir. યસ કઈ યસ બીજું કઈ રાજેન્દ્ર બાકી સર. રહી જાય છે? નહીં સર, થેન્ક યુ. ઓલ Okay. ઓલ ક્લિયર. Okay. Clear. Okay. એક આવજો. પેલો ગ્રુપ ફોટા માટે અગર પેલું Group photo રાજેન્દ્રભાઈ માટે તમારા પીસી માંથી પોસિબલ હોય તો. ચાલુ રાખો તો. યસ યસ રાજેન્દ્રભાઈ, એક રિપોર્ટિંગ માટે ગ્રુપ ફોટો આપણો એક. લઈ લીધું છે મેં. ઓકે ચલો, થેન્ક યુ એવરીવન, થેન્ક્સ ફોર ધ ટાઈમ. Thank you. Thank you. યસ. Thank you, Okay. sir. Bye.